پہ بات کریں گے. سینئر جرنلسٹ اظہر جاوید نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کچھ بتائیے گا, خالستانی موومنٹ جو ہے وہ دنیا کے مختلف بڑے ممالک میں زور پکڑتی جا رہی ہے, اور اب امریکی صدر کا خط آنا ایک خالستانی ایکٹیوسٹ کو کتنا بڑا آپ اس کو ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں, کتنی بڑی پیش رفت سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ نیلم اور شاہین صاحب. بات یہ ہے کہ سکھوں کی یہ موومنٹ کئی سالوں سے جاری ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی سکھ کمیونٹی ہے جو بھارتی پنجاب سے تعلق رکھتی ہے. جہاں آپ دیکھیں برطانیہ میں ہے, اسی طرح کینیڈا میں بھی ہے, اسی طرح امریکہ میں بھی ہے, آسٹریلیا, یورپ, دنیا بھر میں یہ لوگ موجود ہیں. ان میں ایک سب سے بڑی ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان میں نیشنلزم بہت ہے. یہ اپنی جو پنجابی پہچان ہے اس کو بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں. جو ریفرینڈم کی تحریک ہے یہ سکھ فار جسٹس نامی تنظیم ہے جس نے یہ شروع کر رکھی ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ریفرینڈم کا انعقاد کرواتے ہیں. گزشتہ 3-4 سال سے یہ ہو رہا ہے. میں خود بھی تقریباً میرا خیال ہے 4-5 ریفرینڈمز اٹینڈ کر چکا ہوں. کینیڈا میں 2 دفعہ مجھے موقع ملا, ایک دفعہ ٹورنٹو میں, ایک دفعہ وینکوور میں, پھر اٹلی میں 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, یہاں یو کے میں دیکھا. تو یہ جو موومنٹ ہے یہ بڑی گراؤنڈ لیول کی. اس ریفرینڈم والے دن میں یہ دیکھتا تھا کہ وہاں پر جو ووٹ ڈالنے کے لیے پنجابی آ رہے تھے ان میں خواتین بھی تھی, بچے بھی تھے, بڑے بھی تھے, بزرگ بھی تھے, اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ وہ آتے تھے اور اپنا حق رائے دے, کیونکہ یہ ایک علامتی ریفرینڈم ہے. ہوتا تو یہ بڑے آرگنائز طریقے سے ہے, پوری ایک تنظیم ہے اس کے پیچھے جس کو یہ مانیٹر کرتی ہے اور یہ سارا کرتی ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا پریشر انڈیا پر اس پہ پڑ رہا ہے, اور انڈیا اس سے پریشان ہے. اور اس کو رکوانے کے بالکل. لیے آپ کو یاد ہوگا کہ نجر سنگھ کینیڈا میں ان کو مروایا گیا. وینکوور کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ گردوارہ ہے, وہاں پہ مجھے جانے کا اتفاق بھی ہوا. پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو قتل کروایا گیا. اس میں راک کے ایجنٹ تھے, بھارتی اسپاتی اہلکار تھے. تو وہ ایک ایسا قتل تھا جو کینیڈا کی حکومت نے, پولیس نے ٹریس کر لی اور ان کے لوگوں کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر لیا, اور پوری ایک رپورٹ بنی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے خود بھارت کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا, اور انہوں نے کہا کہ اس کے تانے بانے ان سے ملتے ہیں. پھر اس کے بالکل. بعد یقینی طور پہ اظہر جاوید صاحب, پھر ہم نے دیکھا کہ جو دونوں ممالک کے جو سفارتی تعلقات تھے اس میں بہت تناؤ آیا تھا اس حوالے سے. ابھی جس خط کا ذکر کیا جا رہا ہے کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ یہ خط ہے کیا جو سکھ فار جسٹس کے رہنما کو لکھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اور کیا امپیکٹ ہوگا اس کا, اہمیت کتنی ہے اس خط کی؟ دیکھیں جی, پہلے تو کوئی اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی ریفرینڈم کو, لیکن ابھی آپ نے دیکھا جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, خاص طور پہ آج کی جو یہ ڈیولپمنٹ ہے یہ اسی سے لنک قرار دی جا رہی ہے. جو گرپتونت سنگھ پنو ہیں جو ایس ایف جے کے کوآرڈینیٹر ہیں, انہوں نے خط لکھا تھا ریفرینڈم کے حوالے سے. امریکن گورنمنٹ کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا, اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی تھی بھارت سے اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی تھی. اور خاص طور پہ ان پہ حملہ ہوا تھا, جو اس کی ایک سازش ہوئی تھی جس پہ کہ وہ لوگ پکڑے گئے تھے. اور پنو جو ہیں وہ امریکن سٹیزن بھی ہیں, تو وہ ان کے خلاف مقدمہ بھی چلنے جا رہا ہے. تو اسی تناظر میں یہ اس کو اگر کڑیاں جوڑیں تو ٹرمپ صاحب کا جو غصہ ہے بھارت پہ وہ کافی دنوں سے اس کی ہمیں نظر آ رہا تھا, کیونکہ 28-30 بار وہ خود جتلا چکے تھے کہ جی میں نے جنگ بند کروائی, لیکن جو بھارت ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. تو اس خط کے جواب میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں امریکن شہریوں کا تحفظ کریں گے, انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے, تو انڈائریکٹلی انہوں نے ایس ایف جے کی خالصتان ریفرینڈم موومنٹ کو انڈورس کیا. بہت بڑا یہ ایک ان کو بوسٹ ملا ہے, اور امریکن گورنمنٹ کی ایک قسم کی ان کو پذیرائی مل گئی ہے, کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے اس ریفرینڈم کو رکھوانے کے لیے بھارتی حکومت بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی, اور اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ وسائل بھی استعمال کر رہے تھے. امریکن گورنمنٹ سے لابی بھی کر رہے تھے کہ ان کو روکا جائے, لیکن اوپر سے ٹرمپ صاحب نے ان کو خط لکھ دیا. اسی طرح کی ایک کوشش مودی صاحب جب یہ آئے تھے برطانیہ کے دورے پہ,
तो उन्होंने जो के सर कियर स्टारमर हैं उनसे मुलाकात में भी खालिस्तान मूवमेंट पर पाबंदी लगाने की जो है वो बात की थी। तो अब इसके बाद आज जो ट्वीट आई है, आज जो उनका मैसेज आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद तो हालात और ज़्यादा इंडिया के लिए ख़राब हो गए कि जिस तरह उन्होंने उनको धमकी भी दी है, उनके खिलाफ मजीद भी कार्रवाई की भी बात की है, रशिया से असले की बात की है। तो ये सिखों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले उनको खत लिखा गया, आज भारत के खिलाफ हुआ। तो मेरी उनसे बात होती रहती है, मैंने पन्नू साहब को काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू भी किया है और इन पर्सन भी किया हुआ। तो वो लोग पूरी अपनी राइट समझते हैं, लेकिन एक चीज़ वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि ये हमारी पुरअमन जद्दोजहद है। हम असले से नहीं, हम पेन के ज़रिए अपनी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और अपनी पुरअमन मूवमेंट चलाना चाहते हैं। तो ये इस वक़्त भारतीय हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो चुकी है। ख़ास तौर पे 2 दिन पहले जो उनका लेटर लिखा गया है, जिसमें इनडायरेक्टली एंडोर्समेंट उनको की गई है। आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की सतह पर कभी इनसे रब्ता करने की कोशिश की गई हो कि अगर कुछ इनके मुतालबात हैं वो माने जाएं, या अगर कोई गलत फहमियाँ हैं, कोई डिमांड्स हैं वो पूरी की जा सके, ताकि इस मूवमेंट को, जिसको इंडिया एंटी स्टेट समझता है, ऑल्दो कि इंडिया अलहदगी पसंद तंजीमों को हमेशा सपोर्ट करता है, और बलूचिस्तान को में अगर कोई एक दहशतगर्द ग्रुप अपने आप को अलहदगी पसंद कहता है तो वो उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो खालिस्तान से मसला उनको होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी उसी तरह की डिमांड्स कर रहे हैं और ये तो पुरअमन है, इनकी तो बात ज़्यादा सुनाई जा सकती है। देखिए जी, भारत को अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो खालिस्तान मूवमेंट से, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट को पंजाब में मैसिव सपोर्ट हासिल है। पंजाब में लोग खालिस्तान बनाना चाहते हैं। उस पे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो उनकी प्रोटेस्ट भी हुए, आपको याद हो, उनके वो गोल्डन टेम्पल पे हमला भी हुआ था। तो वहाँ पे भारत तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, बात तो बहुत दूर की बात है। ये जो गुरपंतवंत सिंह पन्नू हैं, ये भारत में मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है और वो इनको अपना सबसे दुश्मन नंबर 1 समझता है। ना इनसे उन्होंने कभी बात की है, ना वो इनसे बात करना चाहते हैं। और इसी तरह यहाँ पर बरतानिया में भी उनके रहनुमा हैं फम्मान सिंह, वो भी मोस्ट वांटेड लिस्ट पे हैं। तो इस तरह ये खालिस्तान मूवमेंट से भारत बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, उनको बज़ोर बाज़ू जो है वो उनको काबू पाना चाहता है। लेकिन इस वक़्त जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के लिए एक किस्म की लॉटरी निकल आई है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक़्त पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान की हिमायत में बात करते हैं। उसी तरह ये मेरा ख़्याल है, ये खालिस्तान रेफरेंडम के जो हमायती लोग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट उनको अच्छा, मिल असद गया है जावेद जिस साहब, मैं वक़्त। एक बार फिर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बीएलए जो कि एक दहशतगर्द जमात है, जिसको अमेरिका ने भी दहशतगर्द और यूएन ने भी दहशतगर्द जमात करार दिया है, उसके नुमाइंदों को टीवी पर लेकर उनके ख्यालात, उनकी डिमांड्स तो भारत सुन लेता है। तो ये खालिस्तान जिनकी एक सपोर्ट बेस इंडिया के पंजाब में भी मौजूद है और पुरअमन तहरीक है, इनको क्यों नहीं सुनना चाहता? देखिए, भारत हर वो उस शख्स को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो। जहाँ एक तरफ बीएलए को उन्होंने सपोर्ट किया, दूसरी तरफ आपको याद हो जो अफगान एलिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ है, ये उनको भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो कबायली इलाकों में केपीके में शोरश हो रही है, जो मसाइल हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। तो भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका हासिल नहीं करने देता। आपको याद हो बलूचिस्तान के हवाले से कुलभूषण यादव जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो जो जासूस उनका हाजिर सर्विस ऑफिसर है। इस तरह की बहुत सारी अटेम्प्ट हो रही हैं और जो इंडियन मीडिया का आपने जिक्र किया, इंडियन मीडिया ने तो जब ट्रेन पे हमला हुआ था बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर और उसमें यरगमाल बनाया गया था ट्रेन पर, तो इस वक्त तो उनको वो यरगमाल जिन लोगों को बनाया गया था वो मासूम लोग थे, मजलूम लोग थे। लेकिन भारत और उसका मीडिया उन दहशतगर्दों के साथ खड़ा था, उनको हीरो बना के पेश कर रहा था, उनको फ्रीडम फाइटर बना के पेश कर रहा था। उनका पूरा पूरा सपोर्ट उनके साथ था। लेकिन अगर आप इस तरफ देखें खालिस्तान में,
کہ وہ खालिस्तान में जमहूरी हकूक देने की बजाय उनसे गोली के जरिए बात करता है, यकीनी तौर पर उसके उनको मुख्तलिफ मरवाने की मनाजिर कोशिश फिर करता है। हमने देखे भी। अजहर जावेद साहब कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, आपने उस जानिब इशारा भी किया कि आज जो एक बड़ी खबर अमेरिका और इंडिया के हवाले से ये भी है कि जो 25% टैरिफ आयद कर दिया गया और फिर उसमें पेनल्टी की बात भी की गई, रशिया का जिक्र हुआ, उस जो डिजिटल मीडिया के ऊपर सदर ट्रंप ने एक अपनी स्टेटमेंट लिखी। उसके साथ ही इन्हीं बातों के दरमियान वो ये भी कह रहे थे कि इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, भारत हमारा दोस्त है, और उसके साथ साथ वो उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगा रहे थे। ये जो रवैया है सदर ट्रंप का, ये समझ आती है, और इस रवैये की वजह से जिनके साथ वो हकीकतन खड़े हैं या जिनकी पजीराई करते रहे हैं माजी में, उनको भी मोहतात नहीं कुछ रहना चाहिए। देखिए जी, इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका सिर्फ एक ही मुफाद है कि वो अमेरिका के लिए कोई मुआशी पैकेज या जहाँ पे भी उनको अपनी एक फ़ायदा नज़र आता है वो उस तरफ जाते हैं। भारत एक बड़ा इत्तेहादी रहा है अमेरिका का, लेकिन वो माजी की बात हो गई। और इस सबसे बड़ा, अगर आपको याद हो, एक दिन पहले ही जो तकारीर कल भारतीय पार्लियामेंट में हो गई हैं, और जिस तरह भारतीय वज़ीर आज़म एक किस्म की ट्रंप जो अमेरिकी सदर की स्टेटमेंट को प्ले डाउन कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं जी कि मेरे फ़ोन आया 3 दफ़ा और मैंने वो उठाया नहीं, तो फिर उसके बाद मैंने किया, तो फिर उन्होंने कहा जी क्या बात, बताएं क्या बात है। देखिए, एक एक चीज़ की ट्रांसलेशन होके शाम को किसी भी मुल्क में जो अमेरिकी सफारत खाना है वो वाइट हाउस भेजता है। इसी तरह जो इनकी केबल्स हैं और डेली बुनियाद पर ये चीज़ें भी, उनकी तकरीर भी भेजी गई, सारा कुछ भेजा गया। तो ये कल की जो भारतीय लोकसभा की जो कार्रवाई है उसने जल्दी पर तेल का काम किया, और इसके बाद जो आज फैसला आया, ये जो आज आपने मैसेज देखा डोनाल्ड ट्रंप का, तो ये कल के, हो सकता है ये चंद दिन और रुक जाते तो बात हो जाती। तो ये कल के होने वाले इस भारतीय लोकसभा के इजलास में तकारीर के बाद डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में नजर आए। एक तरफ तो अब भारत पर 25% टैरिफ आयद हो गया, और आपको पता है एप्पल की एक बहुत बड़ी असम्बलिंग या उनकी तैयारी इंडिया में होती है, और इंडिया में जो उनका मेजर बिजनेस है वो अब डिस्टर्ब होगा, बेरोजगारी उधर फैलेगी, और आने वाले दिनों में मुझे तो लगता है, जो मैंने मीडिया उनका फॉलो भी किया है, जो उनकी आज़ाद सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी फॉलो किए हैं, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के लिए आने वाले चंद हफ्ते बहुत ही डिफिकल्ट है, उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा किया जा रहा है। और जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं, इसहाक डार साहब वहाँ पे थे, उनकी फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो से मुलाकात भी हुई, फिर फ़ोन पे भी बात हुई। पाकिस्तान को एक बड़ी ट्रेड डील मिल रही है। तो ये जो हमाकते हैं भारतीय वज़ीर आज़म की, एक तरफ जहाँ उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया एक बेबुनियाद जवाब पर, अब दूसरा जो कल तकारीर हो लेंगे ट्रंप के हवाले से, तो ये पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, खालिस्तान तहरीक को भी फ़ायदा होगा। अब सारी इस सिचुएशन में मेरा ख्याल आने वाले दिन, वो कहते हैं पाकिस्तान की भी सुनी गई है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं अमर, वो भी ठीक है कि पाकिस्तान को मुहतात रहना होगा। कल को पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए ट्रंप साहब को, तो वो इस तरफ ही ना अपनी तोपों का रुख जो है वो मोड़ ले। अभी तो हम उनके बड़े लाडले बने हुए हैं, लाडले बने हुए, गुड बुक्स नहीं है हमारे। तो फील्ड मार्शल को उन्होंने बुला के खाना खिलाया है व्हाइट हाउस में। तो ये इस वक्त तो हम बहुत लाडले हैं, लेकिन उनका मिजाज सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। लेट्स सी, अल्लाह बेहतर करे। लेकिन परेशान तो वो होना जिन्होंने कभी बुरे दिन ना देखे हो। हम तो रहते ही नाजुक दौर से में गुजरते रहते हैं, तो वो अगर मूड चेंज होगा तो फिर वो भी देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।